Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As I say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. The political pundits also talk about the need for congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. Because if the economic and the political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome the esteemed guest in our studios today, Mr. Dr. Raju Wagmare from the Shiv Sena. Wagmare Sahab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. We'll be shortly joined by Ali Daruwala Sahab, Ujjwal Pathak from the Indian National Congress, and Sanjay Dwivedi ji. Dr. Raju Wagmare Sahab, there was an unfortunate incident today. The Metro 4 slab fell down, there were some casualties, and immediately Aditya Thackeray ji got an opportunity to take on you, saying that life has no value where Mahayuti government is concerned. Wagmare Sahab. See, Aditya Thackeray and the opposition, they don't know where to stop about doing their dirty politics. When somebody's life has been gone, somebody's parents or somebody's brother, husband has been gone, and when that kind of time, if you are looking into your politics, shameless character you are, that is what I wanted to talk about, Mr. Aditya Thackeray. See the accidents, this kind of accidents of construction sites has been happening everywhere. Nobody does this kind of work or accidents on purposely. That's why it's called the word accident. It's happened unfortunately. Whatever is happened, it's happened unfortunately. And whatever the loss has been there, the government will help them properly. And we give our condolences to the family and everybody. And we'll make sure that this kind of incident should not happen. The contractor and the people who are responsible for it, definitely there will be a punishment will happen. But unfortunately, these things happen, and that should not would have happened, but it's happened now. So we feel sorry about it. But I feel at the same time sorry about our opposition people also, because they don't know where to stop. Because they should know that this kind of things never happen purposely. When they was in a government, this kind of incidents happen. Not in metro, but in railway or in Nala and Mumbai. Everywhere this happened. And if I have to talk about it, Aditya Thackeray does not have even face, or Mr. Uddhav Thackeray does not have face to talk, because in their total curriculum, last more than 10 to 15 years of time, because of potholes in Mumbai road, there has been more than 10,000 people has been died because of the pothole. And why the pothole was there? Because on a BMC, Mr. Uddhav Thackeray's government was there. BMC was in hand of Mr. Uddhav Thackeray, and he did not worry about to just clearing the potholes. He did not worry about putting the roads in a concretization, but he put pothole every year. Every year they took money out of pothole, but every year there are 10,000 people. Not every year, in that 10 years, almost 10 to 11,000 people has been died in Mumbai. Mumbaikar died because of the pothole and because of Mr. Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray. So they should not have face to even talk about if one person died with this. This is unfortunate. But what you guys have done, that scene is much, much bigger than anywhere else in the world. Because every day, every year, this guys was taking money out of BMC to clearing or the vanishing the potholes, and the potholes are coming one after another. People was dying, but these people did not worry about it. These people did not make sure that this road we will do concretize. Our chief minister, our deputy chief minister, Mr. Eknath Shinde, when he came, he decided that every year that so many people are dying, so he decided no matter how much money we will put,
but we have to make sure the all the roads of Mumbai has to be concretized. And I am proudly telling you, half the Mumbai has been done now, concretization. Now the half the Mumbai is going to happen, and we will make sure there will be no potholes on Mumbai street. So this kind of work we are doing, and Mr. Aditya Thackeray has even faced to talk about us. He should feel shame when he talk about this kind of dirty politics when the incidents, such kind of sad incidents happen. You know, Mr. Raju, Dr. Raju Wagmare, you look very impressive. Need to compliment you on this particular outfit. Oh, thank you, thank you, thank you. I want to ask you the second Tipu Sultan episode है. Tipu Sultan मालेगांव डिप्टी मेयर के ऑफिस के अंदर टिप्पू सुल्तान का पोर्ट्रेट लगाया गया था. हर्षवर्धन सकपाल जी ने तारीफ किया टिप्पू सुल्तान का, and he has compared him to छत्रपति शिवाजी महाराज. It was unacceptable to Eknath Shinde ji, unacceptable to Devendra Fadnavis ji. How do you see this particular episode? What is happening? Dr. Raju Wagmare. I think Congress lost his head. This is what I can talk about Mr. Harshavardhan Sakpan. First of all, he is not in that stature of a guy that Congress should have make him president of Congress, because when he became a president of Congress, half the Congress and half the people was calling me that who is Mr. Harshavardhan Sakpan. So this kind of guy, when you can what you can expect from him? He can talk like this. How he can compare a Tipu Sultan with a Maharashtra Aradhya Devat Chhatrapati Shivaji Maharaj? How he can even dare to talk about it? About the comparison to to Honorable our King Chhatrapati Shivaji Maharaj. He should not have said that. This is very sad thing that Congress is doing and creating themselves in a wrong foot, because Tipu Sultan thinks this is purposely Malegaon mayor or whoever that political our lady, they put those things to just to create a nuisance in a community, to create a nuisance in a Maharashtra, and creating nuisance. So this kind of behavior in the oppositions are planning to do. This is very sad. Nowhere the Tipu Sultan's photo has been put over there. It should not happen, because that is insulting to Maharashtra, insulting to India, and on top of it, Mr. Satpal is, I don't know whether he was drunk that time, or I don't know how he can compare Tipu Sultan with Chhatrapati Shivaji Maharaj. This is very, very, very disgusting, and we condemned Mr. Satpal's points that regarding Tipu Sultan, what he said. We welcome Sanjay Dwivedi Saab from the UBT. Sanjay Dwivedi Saab, namaskar. One more question to you, Dr. Raju Wagmare ji. सलमान खान को डिफेंड किया, सलमान खान को एकनाथ शिंदे जी ने डिफेंड कर दिया, बोले सलमान खान इज एन इंडियन. आप उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, आप आलोचना कैसे कर सकते हो कि सलमान खान आरएसएस के फंक्शन में गया, गलत किया ना? हाउ डू यू सी दिस कर? और फिर अदनान सानी का भी, कि अदनान सानी ऐसे है, फैमिली है, आरएसएस को अपना आइडेंटिटी, अपना नेशनल वर्दीनेस दिखाना पड़ेगा कि देश के दुश्मन. हाउ डू यू सी दिस, Dr. Raju Wagmare sir? Actually, sir, I am thinking like this. See, the RSS, it's a very old, 100-year-old organization formed in 1925 before independence. The people who are in RSS, they are not coming from Pakistan. They are not coming from Bangladesh. They are Indians. The Sarsanga Chalak and all the Swayam Sevak of RSS, they are from India. They are from Maharashtra. And when the organization is doing helping work in Maharashtra is better than any other organization of NGO. Wherever there is a problem, the RSS workers are reach there, they help people. And such kind of organization, if anybody, if Salman Khan wanted to go there and stand for that RSS organization function, why you have to talk bad about Mr. Salman Khan? Everybody has right to go wherever if they want. Everybody has right to support any organization they want. And RSS is not against any religion. They are talking about Hinduism, but their
definition of Hinduism is to take everybody along with them about whoever staying in India and whoever is, uh, you can say, the who loves country and who is standing for country, they respect those people. So if Mr. Salman Khan goes there, Uddhav Thackeray and other people, they should not feel bad about it. What is there wrong in that? RS is not a terrorist organization. Uddhav Thackeray must have felt bad because Uddhav Thackeray's a rally, election rally, the Sayyid Musa was a bomb sport. There is a Mumbai bomb blast accused whose Musa was in Uddhav Thackeray's election rally, who is showing a Pakistani flag. So maybe he thinks that all the organizations are terrorists. So they are not terrorists, Mr. Uddhav Thackeray. Sayyid Musa was a terrorist, and you are taking along with you to bomb blast accused. So maybe that we should consider your party also terrorism party. Your party also against our country because the Pakistani flag that they was showing in your election rally. So Salman Khan went there. It is a RSS rally, and there was no Pakistani flag. And Salman Khan is not a terrorist, Mr. Uddhav Thackeray. The people who you are taking with you to your election campaign, they are terrorists. What Yeah. you have to talk about it? Why you don't have mouth about talking about it? He never condemned, Uddhav Thackeray never condemned about Sayyid Musa and why he was there. They never gave explanation about it. And they are talking about Salman Khan. And what kind of people you guys are? How daring? Matlab, boss, I salute these opposition people and their daring about when they do such a wrong thing and still they come on television and they give a definition of Desh Bhakti and definition about other organization when they're in fact their own character. There is no place where you can put any spot because it is completely covered with a black spot. And they are talking about it. I really appreciate their daring. Where the daring comes from, we don't know. But I wish the politicians should not have this kind of attitude. When they are doing wrong, they should admit and they should condemn that they have done the wrong thing. Because he was a terrorist. He was accused in bomb blast and he was there in his election rally. That time he never opened his mouth and he is opening his mouth on Salman Khan. How sad this is. These people are not two faces. These people are maybe more than Ravan. Ravan was having 10 faces. I think this opposition, Sanjay Raut and all these people, maybe they must be having, I think 20, 25 faces of maybe these are the new Ravan of India. Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Sanjay Raut, these are the new Ravan. Maybe we have to create Ramayana now once again because these are the new Ravan and the Ram is there with us, Mr. Eknath Shinde. So these are the new Ravan. So the Ram is there and this Ram is going to clear all these Ravan people. I go to संजय द्विवेदी साहब. संजय द्विवेदी साहब, आरएसएस का फंक्शन है, उसमें सलमान खान आए. आरएसएस और आरएसएस के फंक्शन में सलमान खान भी था, उसके बाद अदनान सानी भी था. तो ये आरएसएस अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को मास में देश के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो देश पार्ट ऑफ वे जो देश सोच रहा है सर्वधर्म संभाव, इस तो वहां प्रॉब्लम आपत्ति क्या है? द्विवेदी साहब बोले वाघमानी साहब. बड़ा दुख की बात है. I have to go to Okay. very sorry. All right. बड़ी दुख की बात है. All right. Okay, वाघमानी साहब. Okay, डॉक्टर. रिलायबल का सुनो ना. Okay, डॉक्टर. देखो नीतीश, टीवी पे मैं देख रहा हूँ. द्विवेदी साहब प्रॉब्लम क्या है? द्विवेदी साहब प्रॉब्लम क्या है? बड़ी दुख की बात है प्रदीप जी. जब ये पीडीपी से गठबंधन करते हैं, अगर उद्धव ठाकरे मुसलमानों के प्रति जरा सा बोल दें, जबकि माननीय हिंदू देव सम्राट बाला साहब ठाकरे के मंत्रिमंडल में हमारे साबिर शेख भी थे और उन्होंने मंच में घोषणा की थी कि हमारे साथ बहुत से मुस्लिम भाई हैं, साबिर शेख हमारे साथ हैं, हम जाति पात पे राजनीति नहीं करते हैं.
तो शायद इनको ये कहने लगते हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों की तरफ हो गए हैं। अगर आप अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिनको ये भगवान मानते हैं उनके साथ अगर सलमान खान जो भी लोग बैठे हुए हैं, तो क्या अगर हम कुछ पूछ भी ले तो क्या गुनाह हो गया? ये पीडीपी से गठबंधन करते थे। मैं इससे पहले वालों को सुन रहा था कि वो कह रहे थे 10-10, 20-20 सिंह हो गए आजकल, रावण 10 ही सिंह थे। तो मैं कह रहा हूँ पीडीपी से गठबंधन जब इन्होंने किया तो कितने सिंह बन गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिस नेता को इनको नजरबंद करना पड़ा। देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। तो ये चीज देश में नहीं चल सकती है ना, क्योंकि देश में 1947 स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में हर जाति, हर धर्म, हर उसने सहयोग किया था। ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने किया था तो मुस्लिमों ने नहीं किया था, सिखों ने नहीं किया था, या पठानों ने नहीं किया था। जिस हर व्यक्ति का सहयोग, उस सहयोग से हम जीते थे। उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी बलिदान हुए थे, हिंदू भी हुए थे, और दूसरी जातियों के लोग भी बलिदान हुए थे, तब हमें इस देश की आजादी मिली। अब आज आप कहते हैं साहब नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया तो शायद हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। आज परवड़ी में हमारा मेयर महाविकास अघाड़ी का मेयर बना है, तो अगर हमने मुसलमान प्रत्याशी उतारा है, क्या मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को जो देश की जो सुविधाएं दी जाती है, योजनाएं जो चालू की जाती है, उनको लेने का अधिकार क्या नहीं है? या मुसलमान हमारे देश के लिए बलिदान नहीं हुए, या हमारे देश के राष्ट्रपति मुसलमान नहीं बने? तो ये जो ये बात करना, इस तरह की बातें करना देश में, ये शायद जायज नहीं है। और ये यही चीज दिखाती है कि आपके पास अगर कोई चीज आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो गई। उद्धव ठाकरे 30 साल तक आपको गठबंधन आपने किए थे, तब संजय राउत के सर पे 20 सिंह नहीं थे, 20 सर नहीं थे। अब लेकिन जब से उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए, आप एनसीपी जिसको 17,000 करोड़ घोटालेबाज कहते थे, जिसको आप जेल भेज रहे थे, उस आदमी से पार्टी तोड़वा के आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और आप बात करते हैं कि साहब जो हम परिवारवाद नहीं देंगे, तो परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए आपने उन्हीं की वाइफ को तो मुख्यमंत्री बना दिया। तो जहां आपको फायदा होता है, क्योंकि आपके कोष में 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, आपके कोष में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में अरबों खरबों रुपए है, पीएम केयर फंड में खरबों रुपए है, और गुजरात कुछ व्यापारी जो आपका साथ दे रहे हैं, जिनके लिए आपके सब जितने कायदे कानून हैं, जितने नियम हैं, उनको आप बदल दे रहे हैं। चाहे बिजली का देना हो, चाहे मतलब जिस चीज का भी ठेका देना हो, आपके नियम कायदे कानून बदल जाते हैं। तो ये चीज जो है, ये चीज देखने में जो आती है, देश इससे नहीं चलता है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो सभी देश की जातियां, धर्म सब आपके साथ में है। अगर आरएसएस की अगर उद्धव ठाकरे की बुराई करते हैं तो आरएसएस की आपको बुराई करनी चाहिए। आरएसएस मुसलमानों की बात क्यों कर रहा है? अगर उद्धव ठाकरे कर रहा है तो वो हो गए मुसलमान हो गए, उन्होंने टोपी पहन ली। और अगर भागवत जी अगर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन बैठा रहे हैं, तो वो टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये दो तरफा बातचीत जो है देश, ये सबसे बड़ा देश का कलंक है और सबसे बड़ा शर्मनाक बात है कि आप वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं। अब आपने क्या कहते हैं, यूजीसी ले आया। आप देखिए यूजीसी, जिसमें आपने पंडितों मतलब हिंदूवादी लोगों को लड़वा दिया, आपस में लड़वाने का एक आप कृत्य कर रहे हैं कि उनको सुविधाएं ये मिलेंगी और जो सवर्ण है वो बेचारे जेल भी जा सकते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति करते हैं जो संगठन, वो ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। निश्चित बात है, उनकी एज जो है ज्यादा दिन नहीं होती है। जब तक आप वसुधैव कुटुंबकम वाली धारणा से, विचार से आप शासन नहीं चलाएंगे, देश नहीं चलाएंगे, प्रदेश नहीं चलाएंगे, तब तक इस देश का कोई भी भला नहीं हो सकता है। आप कितना भी कहें विश्व गुरु बन गए, हम यहाँ चले गए, हम ये योजनाएं लेके आ रहे, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि जिनका आप विरोध करते थे, आप कहते थे भ्रष्टाचार देश में मनमोहन सिंह के समय में बहुत ज्यादा आगे हो गया है, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप कहते डॉलर का रेट बहुत ज्यादा हो गया है,
हाँ 50 में ज्यादा हो गया है, हम इसको ठीक करेंगे। आप कहते हैं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम इसको ठीक करेंगे। आज की डेट में अगर हम कहते हैं सब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोलियम दाम बढ़ रहे हैं, तो साहब आ जाता है देश बदल रहा है। तो साहब देश बदल रहा है, तो देश बदल रहा अगर है, तो अगर मनमोहन सिंह 50 रुपए में हमको पेट्रोल दे सकते थे, डीजल दे सकते थे, किसी भी तरह उन्होंने दिया हो, तो आज की डेट में आप तो जीएसटी भी ले रहे हैं, जिसका आप विरोध करते थे। आपने जीएसटी ऐसी जगह लगा दी, स्वास्थ्य सेवाओं पे लगा दी जीएसटी, जिसके लिए विपक्ष नेता कहता रहा, लेकिन 12 साल बाद आपको याद आया कि साहब नहीं, इस जगह से हमें जीएसटी हटा लेनी चाहिए। द्विवेदी साहब, मैं एक आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इंडो चाइना बॉर्डर में जिस प्रकार से हाईवे रनवे में एक इंडियन एयरफोर्स के जहाज से लैंड कर दिया। मोदी साहब की जो पॉलिसी है, लुक नॉर्थ ईस्ट, एक सफलता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिज बांधा, ये पहली बार डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। क्या कंटिन्यूसली राहुल गांधी जी का आलोचना करना है कि नो डेवलपमेंट, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या यह सिंबॉलिक नहीं आज जो हुआ है? जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर दे, हमने इंडो चाइना बॉर्डर पे रनवे बना दिया है, तो क्या ये प्रशंसनीय? बोलिए। इससे पहले जो प्रधानमंत्री उन्होंने कुछ किया नहीं क्या? इससे पहले नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, और तमाम प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, क्या उन्होंने कुछ किया नहीं क्या? आप बता दीजिए मुझे, उन्होंने कुछ किया नहीं? उन्होंने, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो देश विश्व गुरु कैसे बनने जा रहा है? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो माननीय चंद्रशेखर ने सोना गिरवी रखवा दिया था। आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब देश की हो गई थी कि मनमोहन सिंह जैसे अगर व्यक्ति ना आते, और मनमोहन सिंह को भी चूड़ी पहना रहे थे, आप उनको चूड़ी पहना रहे थे, चूड़ी दे रहे थे, तो उसमें अभी गरिमा नहीं गिरी। अब आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद छोड़ के भाग जाते हैं कि साहब वहां खतरा है, तो क्या देश की गरिमा नहीं गिर रही है कि एक प्रधानमंत्री संसद भवन में डर के मारे नहीं आ रहा है, और तो इससे क्या देश की गरिमा नहीं गिर रही है? तो देश की गरिमा गिराने का भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, जो महंगाई के विरोध के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के विरोध के लिए हाथ को सर पे सिलेंडर लेके जो वहां दिल्ली प्रदर्शन किया करते थे, जो प्रदर्शन किया, चूड़ी पहनाते, चूड़ी दिया करते थे, वो देश की गरिमा को निरंतर गिरा रहे थे। आज 90 रुपए में हमारा डॉलर हो गया, $1 के दाम 90 रुपए। तो जो भाई हमारे बाहर है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो हमारे भाई इंडिया में उनके लिए मुश्किल है। जो 3% टैरिफ था कांग्रेस के समय में, वो आज टैरिफ 18% हो गया या 50% हो गया था, और देश बदल रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है, देश उन्नति कर रहा है। हम सामान भेजेंगे, हमें चुन्नी नहीं मिलेगी, वो सामान भेजेंगे, 18% हमारा हो गया। तो जो इस तरह की जो चीजें हो रही है देश में, ये देश में जनता को अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, जनता देख नहीं पा रही है। जनता इनकी लच्छेदार बातें, इनकी जुमलेबाजी, इनका झूठ, इनका असत्य पकड़ नहीं पा रहा है। जिस दिन जनता ने इन चीजों को पकड़ लिया, आज आप देखिए उद्धव ठाकरे को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की पीछे पड़ गए थे, लेकिन परवड़ी की जनता को मैं बधाई देता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि वहां ने हमारा महाविकास अघाड़ी का मेयर बना, और उस मेयर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मेयर बना है। तो जो बात ये हो रही थी कि साहब उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, जीवित हो गए, आज उद्धव ठाकरे जो खत्म हो गए, जीवित हो, जो कहीं नहीं है, जो इनके प्रवक्ता चिल्ला कहते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जनता हमारे साथ में है। मैं दारूवाला साहब, द्विवेदी जी, मैं दारूवाला साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। दारूवाला साहब, पिछले 2 दिनों में वी सॉ सम लैंडमार्क थिंग्स हैपनिंग। मोदी साहब सेवा तीर्थ का उद्घाटन, सेवा तीर्थ में पीएम ऑफिस में चले गए, 125 इयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मोदी साहब का कहना, और वहां से उन्होंने 3-4 ऐतिहासिक निर्णय भी ले लिया, चाहे वो लखपति दीदी का हो, एक्सीडेंटल विक्टिम्स का 1.5 लाख का इंश्योरेंस, तो ये, और फिर आज उन्होंने वो ब्रह्मपुत्र ब्रिज, एकदम जो रिवर एकदम जिस प्रकार से है, एंड द रनवे,
रनवे, हाईवे कन्वर्टेड टू रनवे। तो ये क्या, हाउ डू यू सी दिस? और कांग्रेस का आलोचना किस प्रकार से देखते हो दारूवाला साहब? Sir, thank you for letting me in. I am extremely sorry for joining late because there were some technical issues. But to begin with, the statement of view, ये आलोचना, कांग्रेस की आलोचना, इसको हम लोग बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हमारे मित्र संजय द्विवेदी जी ने जो कहा, क्या उद्धव ठाकरे जी इज अ रेलेवेंट पॉलिटिशियन, आई एग्री। उद्धव ठाकरे जी का रेलेवेंस है, वो माननीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र है, और हम किसी में इतनी ताकत नहीं है क्या वो उद्धव ठाकरे जी को रबिश कर सकते, उनका अस्तित्व मिट गया ये कह सकते, क्योंकि लोगों के दिनों में, जन जन में, कन कन में बाला साहेब वंदनीय ठाकरे जी जीते हैं। मगर ये गुमराह करके जो कांग्रेस ने ये जो गंदी राजनीति महाराष्ट्र में खेली, अब देखिए जब से वो उनके साथ में गए, आई विल यूज वेरी गार्डेड लैंग्वेज ओवर हियर, the day Uddhavji got misguided, and whatever was the issue, it was the two and a half term, whether who will be the CM, who will not be the CM, the pratima, the aura, what was there in Maharashtra is deteriorating. And if this continues, it will come to a point where it will vanish. No doubt, सर आंखों पे परभनी ने आपके ऊपर, हमारे जनमानस ने आपके ऊपर विश्वास रखा है, आपको मेयर दिया है, वहां पे आपकी संख्या दी है, नो टू वेज अबाउट इट। उसके ऊपर किसी ने भी कुछ कहना गलत रहेगा। मगर जहाँ पे सर पूरे महाराष्ट्र पे आपका परचम लहराता था, पूरे महाराष्ट्र पे जो दरारा, जो धबधबा राज जी का और उद्धव जी का था, जो लोगों का विश्वास था, वो बाला साहेब ठाकरे जी के पीछे जो मराठी मानुस का एजेंडा था, जो नैरेटिव था, जो भगवा ध्वज लहराता था सर, वो उसके लिए था सर। जब आपने वो हिंदवी स्वराज का सपना छोड़ दिया, और परभनी, आई डोंट नो हाउ रियल इट इज, वेदर आई शुड डिस्कसिंग अबाउट इट और नो, दैट पर्सन हु सैट इन परभनी एज अ मेयर, आई थिंक इट्स अ फीमेल, उनके पीछे जो है सर टिप्पू सुल्तान का फ्रेम है, वहां से माननीय पंतप्रधान जी का और हमारे प्रेसिडेंट मामही मुर्मू जी का पोस्टर निकाल दिया। How true it is for you to find out. It was there on social media. In Malegaon. Yes, sir, yes. so this is not done, sir. This is not done. तो जब ये कहते हैं कैसा हराया, तो ये नैरेटिव नहीं चलेगा ना साहब। आपने आप हराया सर आंखों पे, मगर आप किसके कान के नीचे बजाएंगे? 23 साल की दोस्ती को फेंक के देंगे और कहेंगे कि जिस दिन हम सत्ते में आएंगे तो हम आपको नेस्तो नाबूद करेंगे। तो ये जो नैरेटिव जो कहते हैं, जिस दिन इनकी लोक संख्या बढ़ेगी, जिस दिन ये लोग, आपको भी वहां से भागना पड़ेगा। तो ये जो डर, ये खौफ है, ये जीता जाता खौफ है। और इनके साथ में माननीय उद्धव जी साठ गांठ कर रहे, इनके साथ में बैठ रहे। द्विवेदी जी इतने क्लोज है उद्धव जी के, मैं जानता हूं, अगर वो द्विवेदी जी हमारे उद्धव जी के कान में एक मंत्र डाल सकते, क्या भाई ये जो केसरिया झंडा है उसके वजह से मान सम्मान महाराष्ट्र में तुम्हारी कीर्ति है, उसको इतने इजीली जाली टोपी के पीछे मत घलाइए। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो किया था और जिसको बाद में जो ट्विटर हैंडल से विड्रॉ किया था सर, वो लाने का मौका इस देश में मत दीजिए। दारूवाला साहब, एक है कि वी हैड अ प्रॉब्लम वेयर सलमान खान अटेंडिंग, उसमें उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी आलोचना किया। देन वी हैड अदनान सानी सिटिंग विद आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के साथ अदनान सानी बैठे थे, तो वहां पर भी आलोचना करके आरएसएस पे प्रश्न, यूबीटी आरएसएस पे प्रश्न की, क्या आरएसएस ये देशभक्ति है? अदनान सानी का फादर पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ लड़ा। तो हाउ डू यू सी आरएसएस के कैरेक्टर पर प्रश्न उठाना? यूबीटी, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द आरएसएस, दारूवाला साहब। सब में पहले सलमान खान जी गोइंग ऑन द व्यासपीठ विद पूजनीय मोहन भागवत जी, एक वेलकम स्टेप है साहब। इन्होंने सलमान खान को इतना ट्रोल किया है, इनके साथ में जो ज्यादती करी है, जबकि उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उसके बाद भी उनको ट्रोल करने वाले लोग कौन थे, हम सबको मालूम है, मीडिया में हम सब लोग ने उसको विटनेस किया है। और अदनान सामी बीइंग ऑन द डायस एंड बीइंग इनवाइटेड फॉर अ फंक्शन व्हिच इज हेल्ड बाय द संघ इज अ वेलकम मूव।
यही तो हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे खान भी चलेगा, सामी भी चलेगा, शेख भी चलेगा और पसमंदा गरीब मुसलमान भी चलेंगे। जब हम कहते हैं क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से हम मुसलमानों को मेन प्रवाह में लाना चाहते, ये उसकी पहल है, उसकी शुरुआत है। सलमान खान तो छोड़ो, पूरा कारवा बढ़ते जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो आपने जो उसको एक जमाने में हरे झंडे की पार्टी बनाने की कोशिश करी थी, ये कांग्रेस के माध्यम से, ये पूरा भगवा ध्वज लेके चलने का काम आने वाले दिनों में मुस्लिम करेंगे। और वो करने की दायित्व मेरे ऊपर है। रात दिन जो चीज के लिए मैं झड़ता हूं, जिसके लिए मेरी पार्टी झड़ती है, वो यही करने के लिए कि वी वांट टू ब्रिंग मुस्लिम्स ऑन द सेम पेज एज द भारतीय जनता पार्टी, एज द सनातनी हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज हिंदू सनातनी के अंदर हिंदू मुस्लिम सनातनी भी आते हैं। ये जिस दिन ये बात नीचे लोगों के मन तक रुजू हो जाएंगी, और जब ये एक आप ये जो चेंज देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो आपकी जब जाग उठेंगी, बोले भाई हमने क्या किया। अब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलने वाली। मुसलमान भी समझ चुका है यहाँ पर क्या अगर डेवलपमेंट करना है, क्योंकि सर जनधन योजना के अंदर 41% मुस्लिम अकाउंट्स है सर। उज्ज्वला योजना के अंदर 33% मुसलमान लोगों को भी गैस मिला है। यहाँ पे कोई भी स्कीम के अंदर भेदभाव नहीं किया गया, जाति को पूछा नहीं गया। मोदी जी के ऑफिस से जो भी यहाँ पर एजेंडा रोल आउट हो गए, उसके लाभार्थी मुसलमान भी है। आप देखिए मेरी बात, आप रिकॉर्ड पे जाके देखिए सर, 42-43%, अगर 100% women have got a percentage, उसमें 42-43 मुस्लिम बहनाओं के अकाउंट में भी जनधन के पैसे जा रहे। बेशक वो लोग जो है उनके दिल में रहम है, क्योंकि लाड़की बहन को हाथ चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो छोटा बहुत सहारा हम दे रहे, वो सहारा उनको लॉन्ग वे तक लेके जा रहा है। बिहार के अंदर जो हमने महिलाओं को मान सम्मान और जो उनको इज्जत दी, जो नगर पालिका के अंदर 50% विमेन, आप जो कह रहे हो ना, क्या वहाँ पे एक महिला सांसद, महिला काउंसिलर मेयर बनी, वो देने का काम भी सर मोदी जी ने किया। इनके सारे ब्लूप्रिंट्स होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस होते थे, सारे चीज एक प्लान के ऊपर पड़े रहते थे। वो प्लान को बेशक जो इन्होंने बोला क्या मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मनमोहन सिंह जी ने बहुत कुछ किया, पर उसको मटेरियलाइज करने को इनके लोगों ने उनको नहीं दिया। और वही प्लान्स को, वही एजेंडा को, वही जीएसटी को, वही घर को योजना को, वही लाइट, बिजली, पानी, मकान, रोटी को लेके हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया और लोगों तक लेके जाने का काम ये सरकार ने किया। मैं यार डंके के चोट पे कहता हूँ, सारे इलेक्शंस अब खत्म हो चुके, विधानसभा, जिला परिषद, नगर पालिका, विधान और सारे लोकसभा, सारे इलेक्शंस अब खत्म। अब 5 साल आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट देखेंगे। महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी, एकनाथ जी और सुनीता वहिनी और योगी जी के नेतृत्व में जो हमारा सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र भारत, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला भारत, आर्टिकल 370 अबॉलिश वाला भारत, और जितने भी सपने हमने लोगों को जो झूठे नहीं दिखाए, उसको कंसेप्चुअलाइज करने का काम ये आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आपको होते हुए दिखेगा। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हुए आप देखेंगे, मुसलमान के अंदर सनातनी लोग आते हुए देखेंगे, कीर्तनकार, भजन गाने वाले मुस्लिम भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप मेरी बात को नोट करिए। दारूवाला साहब, एक ऐतिहासिक चीज हुआ बांग्लादेश इलेक्शन में, बीजेपी has got 1 seat. That is absolutely stunning. Out of the way is surprising है। जो मोहन भागवत जी बार बार हर मंच से कह रहे हैं कि जहां भी हिंदू समाज के लोग हैं आपको एकत्रित करके, तो क्या मोहन भागवत जी का स्पीच एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है वहां पर जो बांग्लादेश में 1 सीट मिला? हाउ डू यू सी दैट दारूवाला साहब? सर, जैसा इलेक्शन रिजल्ट आया, मोदी जी ने कहा है कि हमारा जो संबंध है बांग्लादेश के साथ, उसको हम सुधारने के लिए हम पहल करेंगे, हम एक हाथ दोस्ती का बढ़ाएंगे, और वो हमारे नेबर है। हमने पाकिस्तान के साथ भी पहल किया था, उनके साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर नहीं मालूम कौन सा, वो बोलते हैं ना एक मराठी में, उनको क्या शार्प लगा है, क्या कर्स लगा है, उनकी वो दलिंद्री मिटते मिट नहीं रही है। पर वो हाल बांग्लादेश का नहीं होने देंगे। वहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे मास है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स है, वहाँ पे भी लोग है जो जीवित है, जो हमारे भाई है, वो भी हमारा अंग हुआ करते थे। अगर बांग्लादेश का विकास होता है, हमारे बॉर्डर का विकास होता है, तो जो झूठे नैरेटिव सत्ता में आने के लिए ममता
गैंग जैसे लोग जो चलाते, उसके ऊपर जो मदनी गैंग जैसे चलाते, जो शर्जिल इमाम जैसे गैंग जो चलाते, जो वंदे मातरम का विरोध करते, जो यहाँ पर देश को वंदन नहीं करते, जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम जब गाएंगे हम खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोगों का धिक्कार करने के लिए अगर हमको बांग्लादेश का सहयोग लेना पड़े तो हम वो भी करेंगे। प्रदीप सर, द्विवेदी जी, जैसे अली दारूवाला साहब कह रहे हैं वंदे मातरम से क्या आपत्ति है? अगर एक वहां पर कानून बना है, देश में कानून बना है कि वंदे मातरम सबको कहना होगा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? इंडिया अलायंस इस प्रकार से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? द्विवेदी जी, वंदे मातरम बोलने के लिए संसद भवन में रोक जीआर किसने लागू किया था? रोक किसने लगाई थी सर? लोग तो सरकार ने लगाई थी ना कि आप संसद भवन में वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलेंगे। बाकी विपक्ष में कौन ऐसा व्यक्ति है जो वंदे मातरम और जय हिंद नहीं करता? ये तो जबरदस्ती वाली बातें हैं जो कही जा रही हैं और ये बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों को बदनाम करने के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने रूमर फैला दी कि साहब अगर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो साहब उनको सुरक्षित नहीं है, कि देश की जनता ये सोचे कि साहब देश की जनता ये सोचे कि साहब कांग्रेस सांसद बनाना उचित नहीं है। जिस तरह इन्होंने ईडी के माध्यम से 12 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत में रिहा किए गए, कितनी दुखद बात है, बहुत इतनी दुखद बात है। उसी तरह से आज लोकसभा अध्यक्ष का कृत्य, ये तो इतना शर्मनाक कृत्य है कि वो लोकसभा में बैठकर कांग्रेस सांसदों की देश में ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं कि इनको सब चुन के मत भेजिए कि अगर लोकसभा में आएंगे तो साहब मोदी जी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कितनी दुखद बात है ये, और कितनी दुखदाई, कितनी शर्मनाक बात है। हम तो कहते हैं मोदी इनको लोकसभा अध्यक्ष जी को इस बात के लिए पहले माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की बात का आइंदा से कभी ना हो, और प्रधानमंत्री जी शान से लोकसभा में जाए और देश के जिस कोने में जाने चाहे, मैं उनको जय हिंद करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ, जिस जगह जाना चाहे देश बिल्कुल बिल्कुल उससे अपनी ताकत से वहां पहुंचे। वो कहीं किसी भी देश किसी भी जगह पे उनके लिए कोई ऐसा नई घटना घट रही है जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हो, और वो अगर संसद भवन में नहीं जा पा रहे हैं तो शायद ये हमारे देशवासियों के लिए दुख की बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष से निंदा करता हूँ उस बात के लिए। इस तरह कृत्य नहीं करना चाहिए, राजनीति में इतना ज्यादा नहीं गिर जाना चाहिए। जिस तरह मनमोहन सिंह को सांसदों ने चूड़ियां भेंट की थी वो बहुत निंदनीय कार्य था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उस कृत्य की बुराई नहीं की थी, उस कृत्य की नहीं कहा था कि साहब ये गलत है, जबकि उन सांसदों को निकालना चाहिए था, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। इस तरह चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी इस तरह की घटना करता है, जिस तरह की बातें करता है, वो उसको पार्टी रखने का अगर नियम बन जाए, या जो 2014 के बाद जिस तरह से बातचीत हो रही है देश में, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात की जा रही है कि साहब उन्होंने टोपी पहन लिया और उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन वापस लेके परिवारवाद का नारा लगने लगा। तो भैया अगर गठबंधन उन्होंने लिया है, अगर वापस लिया है, तो इसमें कोई उन्होंने बुराई थोड़ी ना कर दी है। हम अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम निर्णय जो भी लेना चाहेंगे पार्टी में वो हम निर्णय लेंगे। आप बीजेपी जो लेना चाहें वो निर्णय आप बीजेपी में लीजिए। तो इस तरह की जो बातचीत की जा रही है, देश में जो पैदा किया जा रहा है, लोगों की भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों की झूठ फैलाया जा रहा है, जुमला फैलाया जा रहा है, इसका मैं निरंतर विरोध करूंगा और विरोध करता रहूंगा। निश्चित आप ये जान लीजिए। दारूवाला साहब, you were raising a figure, you want to say something? Exactly, over here you asked him वंदे मातरम का विरोध क्यों, तो तीसरी बात कर रहे थे, चूड़िया के ऊपर चले गए। अगर वो उसको जवाब नहीं देना चाहते तो आपको मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश करता हूँ। संजय द्विवेदी जी, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया है, वो बोलते मुस्लिम नहीं खड़ेंगे। और मैं पाकिस्तान टीवी, मुनसिफ टीवी, ऐसे उर्दू चैनल्स पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे एंकर्स भी बोलते भाई उससे तो मुझे भी आपत्ति, मैं भी नहीं खड़ूंगा। अरे क्यों भाई, माँ दुर्गा, सरस्वती और यहाँ पे लक्ष्मी की पूजा करने की बात चल रही है यहाँ पे, जो तो आपकी भी आस्था है, मेरी भी आस्था है, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे लोग
यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के माध्यम से वो लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके वाद विवाद करने की बात कर रहे हैं। आपने इनके साथ संगठन तोड़ देना चाहिए सर, क्योंकि माँ सरस्वती के लिए अगर आपके बाजू में बैठने वाले भाई बहन उसकी अगर आदर नहीं करेंगे तो आप उनको सत्ता की लालच में बाजू में लेके मत बैठिए संजय जी। आप पहले इंसान बनिए, मैं रिजाइन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे एक बात बोलिए यहाँ पर, जो एक ने क्या यहाँ पे जो बोलते हैं ना मदनी गैंग, जो ने क्या न्यूयॉर्क पोस्ट से यहाँ पे शर्जील इमाम की रिलीज के लिए लेटर लिखते हैं, जो आदमी बोलता तेरे तन से सर जुदा, कश्मीर आसाम को हम अलग करेंगे, ये देश में अराजकता लाएंगे, और वो लोगों के लिए आप लोग के नेता लोग यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट को ओवरनाइट चलाइए, उनको रिलीज दीजिए, रिहा करिए। सर ये काहे का सर, ये देश की जो बोलते ना आई कट इंडिया बाय 100 वुंड्स, यानी आपको मैं 100 घाव करूंगा। सर ऐसे लोग के साथ आप नहीं रहना चाहिए। आप भी सनातनी है, आपने टिक्का लगाया है, आप तो मुझसे ज्यादा ये सब चीज जानते हो, भगवत गीता को जानते हो, सनातन को जानते हो। सर ऐसे लोगों की निंदा करना चाहिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द फाइनल थिंग ओवर हियर, जो वंदे मातरम नहीं कहेगा, जब तक हम जिएंगे, जब तक जिएंगे या मरेंगे, वंदे मातरम हम गाते रहेंगे। ये भी आपने एक जो है ना, ये ऐसा आपने एक नैरेटिव देना चाहिए। दारूवाला साहब, हुमायूं कबीर वर्सेस योगी, बाबरी मस्जिद यहां पर नहीं बन सकता। योगी जी जिस प्रकार से कह रहे हुमायूं कबीर का, तो कयामत के दिन तक नहीं बनेगा। ये योगी जी के स्टेटमेंट में बहुत आलोचना होने लगा। You got OIC commenting on that, you got हुमायूं कबीर. How do you see that? ये बाबरी मस्जिद वाला एपिसोड किस प्रकार से आप देखते हो अली दारूवाला साहब? देखिए ना सर, मैं आपको कहता हूँ ना, मदनी गैंग, कबीर गैंग, ममता बनर्जी गैंग, ये इंडी अलायंस, ये लोग जो है ना, उनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। सब में पहले मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो देश की माटी है ना, ये जो देश की माटी, इसको मुसलमान सर आंखों पे इसका वंदन करता है, और ये मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूँ और बहुत बड़ा विधान करता हूँ, क्या जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला था, तो जब वहां से वो चलते जा रहे थे, वो मुड़ मुड़ के टर्न कर करके मक्का की तरफ देखते, बोलते मक्का माँ मुझे तुझसे प्यार है, अगर यहाँ के लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो मैं मक्का शरीफ को छोड़ के नहीं जाता। जब 20 साल के बाद जब इस्लाम फैला, जब उनके पास ताकत आई, जब उन्होंने मक्का में आया तो उन्हें वहां पे सजदा किया, वो माटी को चूमा और बोला मक्का तो मेरी माँ है। जब मक्का की जमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बन सकती, तो ये देश जिसके अंदर मैं रहता हूँ, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी बच्चे रहते, इसका वंदन करके इसको अगर हम नतमस्तक होते हैं तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके माध्यम से मेरे जनमानस को यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो दिशा भूल करने वाले लोग हैं, ये मदनी कबीर हुमायूं गैंग है, इनके नाथ को मत लगिए। ये दोष को टुकड़े टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े करके बांटने में तुले हुए हैं, इनसे दूर रहिए, रिफ्रेन रहिए। अब तो कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं आपके माध्यम से कोई अपील नहीं कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ सर, मुस्लिम बनिए, सनातनी मुस्लिम बनिए, और ये देश के निशान को, ये देश के झंडे को लेके चलिए, क्योंकि आज़ादी के अंदर सबका खून बहा, इसके अंदर मुसलमानों का भी खून बहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उस लड़ने वाले जो माउली थे वो भी मुसलमान थे। आप लोग मत बटिए, ये जो घिनौनी जो अंग्रेजी राजनीति ये जो कांग्रेस 60 ईयर से कर रही है, माननीय उद्धव जी इतने इंटेलिजेंट है, मैं तो कहता हूँ आप प्लीज हमारे सनातन के साथ आइए, क्योंकि कार सेवक जो थे वो शिव सैनिक भी थे। जितना श्रेय भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को है, उतना श्रेय हमारे शिवसेना को भी है। मैं कहता हूं आप देवेंद्र फडणवीस जी को इस तरह की से नहीं देखिए, वो ये महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी आवश्यकता है वो करेंगे, और ये महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ स्टेट महाराष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। द्विवेदी साहब, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने हाल ही में कहा कि रिजर्वेशंस को मैं डिफेंड करता हूं। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जब पब्लिक इसके लिए तैयार है, पूरे जो लोग हैं इसके लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जब तैयार होंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमको एनफोर्स करना पड़ेगा। इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ बहुत सख्ती से कहा कि उनको ढूंढ के निकालिए मोहन भागवत जी। तो सावरकर हो, उनको सावरकर पे भरत रत्न, तो आपका विरोध आज संजय राउत जी ने जिस प्रकार से आरएसएस को एंटी देश विरोधी कहा, कहां तक जायज है?
कहां तक जायज है द्विवेदी साहब? देखिए प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट बात है, इस देश में दो पार्टियां ऐसी थी, एक शिवसेना जो हिंदूवादी थी, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, और कुछ कहिए भारतीय जनता पार्टी थी। आरएसएस तब कहां सो रही थी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री शिवसेना को तोड़ रहे थे। जो शिवसेना 30 सालों तक आरएसएस के साथ में रही, आरएसएस के गुण गाती रही, आरएसएस की मान करती रही, आरएसएस के संगठनों में, कार्यक्रमों में भागीदार बनती रही। तो अगर हिंदूवादी पार्टी तोड़ी जा रही है और आरएसएस शांत बैठा है, इसका मतलब आरएसएस का मोटिव कुछ और है। फिर अगर वो हिंदूवादी पार्टी को टूटे दे सकता है, तो मैं समझता हूं फिर वो हम आरएसएस की बात करना हमारे लिए शायद जायज ना हो सकता हो। आरएसएस क्या करती क्या नहीं करती है, जिसने कभी हिंदुस्तान में कभी आजादी लड़ाई नहीं लड़ी, तो हम 30 साल तक संघ में रहे, तो जिसने लड़ाई नहीं लड़ी, आज अगर हिंदूवादी पार्टी शिवसेना को तोड़ रहे थे, बाला साहब ठाकरे के इतने एहसान थे मोदी जी के ऊपर, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई मतलब वो नहीं है, और उस एहसान फरोशी के लिए इन्होंने क्या किया, पार्टी तोड़वा दी। अगर ये न चाहते तो एकनाथ शिंदे अलग 2.5 साल बाद अलग हुए। एकनाथ शिंदे 2014 में अलग नहीं हुए, ना 2019 में अलग हुए, एकनाथ शिंदे 2.5 साल बाद अलग हुए। क्यों अलग हुए? पूरी बातचीत हो गई थी, मुख्यमंत्री का दे दिया गया था। मैं कहता हूं जैसे शरद पवार जी अलग हुए, उन्होंने पार्टी बनाई, आम जनता के बीच गए, चुनाव लड़ा और अपनी सत्ता बनाई। आज उनकी एक पहचान है, इंदिरा गांधी की पहचान है। या जो भी जनता दल से जो लोग अलग हुए, या जिन पार्टियों से लोग अलग हुए, या ममता बनर्जी अलग हुई, उनको एक पार्टी बनाना चाहिए था। वो तो जाके सीधे भारतीय जनता पार्टी खोद बैठे, मुख्यमंत्री बन गए। तो देखिए यही दुख की बात है कि इसका मतलब आरएसएस का कि दोनों आंखें नहीं खुली है। आरएसएस सिर्फ एक आंख खुली है, वो एक आंख से देख रहा है इस देश को। तो भैया ऐसा अगर एक आंख से देख रहा है, तो उनके अंदर कोई कमी अगर होगी तो मुझे भी कहना पड़ेगा। अभी हमारे दारूबाज जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं इस देश में आपकी केंद्र सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो राष्ट्र विरोधी बातें करता है, जो कहता है मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, नहीं गाऊंगा, या जय हिंद में नहीं करूंगा। देश में कानून है, उनको आप अंदर करिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई अन्य हो। टुकड़े गैंग, फलाना गैंग, ढिमाके गैंग, इस तरह की जुमलेबाजी डिबेट में अच्छी नहीं होती है। आप उनको सजा दीजिए। जो भी 2014 के बाद जो देश में विभाजन की बात कर रहा हो, जो देश में टुकड़े की बात कर रहा हो, देश विरोधी बात कर रहा हो, बांटने की बात कर रहा हो, लड़ाने की बात कर रहा हो, उसके लिए आपके पास कानून है और आप उसके तहत आप उनको अलग करिए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि राज ठाकरे जी जब लोकसभा में आपको समर्थन दें तो राज ठाकरे बहुत अच्छे हो गए, पीडीपी जम्मू कश्मीर में आप उनके समर्थन लेके 3 साल सरकार चलाए तो बहुत अच्छे हो गए। और अगर हम एनसीपी गठबंधन कर लें, कांग्रेस से गठबंधन कर लें, तो बड़ा गलत हो गया। अगर मुसलमानों की बात करें, जो बाला साहब ठाकरे के नीतियों के अनुसार है, जब साबिर थे मंच में बैठे थे, बाला साहब ठाकरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं किसी जाति पात राजनीति नहीं करता हूँ, और मुसलमान भाई भी मेरे साथ में। अगर हम उद्धव ठाकरे उनकी धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत आ रही है? आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ अगर मानी उद्धव ठाकरे या शिवसेना यूनिटी हो, तो मैं सबसे ज्यादा विरोध करूंगा। हमारे हृदय में, हमारे उसमें कण में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति भरी हुई है। हमारे खून में कतरा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रीय जन उसके लिए है कि हमें देश से अगर कोई खतरा है, द्विवेदी साहब उनसे ये डील जो यूएस डील है, इंडो यूएस डील, मोदी ट्रंप साहब के बहुत बेहतरीन डील हो गए। $30 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, मोदी साहब ने क्रिएट कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है, जो फार्मा है, जो आईटी है उसको, और फार्मा में जीरो। तो इतने जबरदस्त जो फादर ऑफ डील्स है राहुल गांधी जी, जो आपके इंडिया अलायंस के हेड है, वो पूरे फार्म यूनियन के लीडर्स से मिलकर एक देश विरोध, पूरे देशव्यापी आंदोलन का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या ये ठीक है?
इतना जबरदस्त डील हुआ, यूरोपियन यूनियन से हुआ, यूएस से हो गया, मगर आप पूरे फार्मर्स यूनियन लीडर्स को सबको मिलाकर एक देशव्यापी आंदोलन करने पर आप प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या ठीक, कितना ठीक है? क्या देश विरोधी एक्शन नहीं है द्विवेदी जी? देखिए, विपक्ष की कोई बात होती है, देश विरोधी कैसे हो जाती है प्रदीप जी? अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है, अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है, तो वो देश विरोधी कैसे हो गया? वो भी सांसद हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उन्होंने सोच समझ ही कही होगी ना। अगर उस डील में ऐसा कुछ है, आज 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 कह रहे हैं कि पहले हम 3 से 4% देते थे, कह रही अब हम 50% दे रहे, फिर 25 दिया, फिर हम 18% दे रहे। आज हमारे कृषि प्रधान देश है, हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ सुई से लेके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बनते हैं। हम ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बना रहे हैं? अगर हम डील कर रहे हैं, देखिए ये मेरा अपना विचार है, ये मैं डील संबंध में नहीं बोल रहा हूँ। हमारा विचार ये है कि अगर हमारी कृषि प्रधान देश है तो हमारे यहाँ उपजाऊ चीजें होंगी, उपजाऊ चीजें वो भी होंगे, और हमारी जो हमारे यहाँ जो बनते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो आज देश के बाहर है, आज देश के बाहर है, जिनको शायद सरकार नहीं रोक पाती है, ये हर सरकार के विषय की बात है, वो देश के बाहर है। तो हमारे पास अगर ऐसी चीजें हैं और उसके बाद भी अगर हम कोई कंप्रोमाइज करते हैं जिससे हमारा कृषि प्रधान या हमारी देश की बनी हुई चीजों में इफेक्ट होगी, तो शायद ये गलत हो सकता है। अब उसमें क्या डील मैंने नहीं देखी, न डील मैंने पढ़ी, लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने डील देखी है, डील पढ़ी, उन्होंने कहा राष्ट्र विरोधी है, तो निश्चित आप मान लीजिए प्रदीप जी, वो राष्ट्र विरोधी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जब से मैं 2014 से देख रहा हूँ, जो इन्होंने कहा कि मेरी बात अली दारूवाले को शायद बुरी लगे, लेकिन मैं कुछ सच बोलता हूँ, और शिव सैनिक जो है 80% समाज सेवा करता है, 20% राजनीति करता है। अगर उद्धव ठाकरे जी कोई बात कहते हैं, अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही, तो निश्चित उसमें कोई ना कोई सार है। हो सकता है आज देश की जनता ना समझ पाए, लेकिन कल यही जनता, जब हम जीएसटी का विरोध करते थे, तो यही प्रवक्ता लोग कहते थे नहीं साहब जीएसटी बहुत अच्छी है। जब हम कृषि कानून का विरोध करते थे, तो 4 महीने 3 महीने तक इसी में चलता रहा, नहीं साहब कृषि कानून बहुत अच्छे हैं। और नोटबंदी का विरोध सही था, नोटबंदी 2 करोड़ नौकरी मिलने की बात ठीक है, 15 लाख मिलेंगे, ठीक बात है। तो ये चीजें जो चल रही थी देश में, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि ये चीजें जल्दी इसको देखना चाहिए कि हमारी जो पैदावार है, जो हमारी अपनी चीजें हैं, उन पर उनका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर उस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो निश्चित हम कोई समझौता अगर कर रहे हैं तो शायद ये देश हित में नहीं है, जो मेरा अपना विचार है। मैं दारूवाला साहब को समिंग अप के लिए, दारूवाला साहब, विल राहुल गांधी जी जिस प्रकार से फार्म यूनियन लीडर्स, समूह फार्म यूनियन लीडर्स को मिला और एक देशव्यापी शायद आंदोलन प्लान कर रहे हैं इंडो यूएस डील के खिलाफ, उनका कहना है कि कॉम्प्रोमाइज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, मोदी साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, इज इट गोइंग टू हैव एन इफेक्ट? दारूवाला साहब, क्या ये इफेक्टिव होगा? I'll tell you one thing over here. When the paper comes out, when the nitty-gritties are finalized, and when actually the US deal is signed, and before signing, we will come back to the Janmanas. We will take the consensus. And जो लोक प्रतिनिधि यहाँ पे सांसद में भेजे हैं, उनका उनका कॉम्प्रिहेंशन और उनका कॉन्डेंसेशन, यानी उनकी सहमति लेकर ही काम होने वाला है। और राहुल जी वापस एक बार जो कहते ना, ही विल बी फॉलिंग ऑन हिज फेस, वो उल्टे अपने बैक के ऊपर इस चीज के ऊपर गिरने वाले। जो चीज अभी तक सामने नहीं आई, जो बुक अभी तक रिलीज नहीं हो गई, जो थ्रेट इन्होंने हमको दिया था, जो हिसाब से ये लोग पूरे मुद्दे को डायलॉग लेकर 1 महीना भर ये सांसद चलाने के लिए, ये अधिवेशन चलाने के लिए ये लोग जैसा बैकआउट कर रहे, इनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है। दे शुड कम विद रॉक सॉलिड एविडेंसेस। उन्होंने बीएससी के माध्यम से मंत्रिमंडल को, सरकार को, मंत्रियों को सवाल पूछ के कंस्ट्रक्टिव काम लाना चाहिए। आपको जो भी ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप सामने बैठ के डिस्कस करिए और वो रिकॉर्ड पे लाइए, क्योंकि आने वाले 100 साल में जब ये सवाल पूछेंगे कि ये देश अगर तरक्की के राह पर है, या जैसे द्विवेदी जी कहते हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं,
तो ये लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा और इसके ऊपर जब किताब लेके जाएंगी तो इसके ऊपर मोदी जी को महापुरुष करके टाइटल जब मिलेगा तो हम यहाँ पे तो भले नहीं रहेंगे डिस्कस करने, मगर इंडिया जो नंबर 1 होने जा रहा है ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और इसके अंदर राहुल गांधी जी का जो रोल है वो एक पॉजिटिव तरीके से अगर आता उभरता तो हमें उसकी खुशी थी। जो हमारे इतने अच्छे नेता हैं उनको फुला फुसला कर शरद पवार जी ने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये लोग ने जो फुला फुसला कर उनको जो एक सीएम का जो कैरेट दिया था, गाजर देके कुछ दिन तक उनका जो बहलाया था, उन्होंने ये महाराष्ट्र की यूनिटी तोड़ने का काम करा। 2.5 साल के अंदर लोगों ने, जनमानस ने वापस केसरिया को, देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे जी को और सुनीत्रा वैनी और स्वर्गवासी अजित पवार जी को जो उन्होंने सत्ते में लाया, ये इसका पूरा जीता जागता एग्जाम्पल है। हम झूठ को लेके ज्यादा दिन नहीं चल सकते। झूठ ये एक दिन उभर के आता है और जिस दिन उभर के आता है तो हमारे पास आप लोग के सामने आने के लिए कोई भी चेहरा नहीं रहता। दारूवाला साहब, दारूवाला द्विवेदी साहब, सर थोड़ा समय दीजिए सर। हाँ बोलिए बोलिए। जवाब मैं एक चीज का जवाब दे दूं। हाँ बोलो। दारूवाला जी ने बड़ी अच्छी बात कही सर कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बना के जो है कांग्रेस ने और एनसीपी ने दिखाया। तो मैं एक बात कहना, एकनाथ शिंदे क्या हुआ भाई, उस समय आपके 105 विधायक थे, जब आपने बड़ा मुख्यमंत्री को उन्हें ऑफर दिया कि पार्टी तोड़ के चले आइए, आपको ये पद मिलेगा, आपको ये मिलेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी बेचारे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, पूरा पाउडर लगा लिया था, तेल में तेल लगा लिया सर में, बिल्कुल तैयार खड़े थे वो अचानक एकनाथ शिंदे जी है मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छी बात है, 2.5 साल उन्होंने चलाया। 2.5 साल बाद सर क्या हुआ, आपने धोखा उनको नहीं दिया क्या? आप जिनको मुख्यमंत्री कह के लेके आए थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और जो बेचारे वो मांग रहे थे अपने लिए, जो अपने लिए मांग रहे थे कि साहब हमको ये विभाग चाहिए, वो विभाग भी नहीं दिया आपने। और आपने सोचा था कि बीएमसी में अगर हम पार्टी तोड़ देंगे तो बीएमसी में 140 सीटें मेरी आ जाएंगी, बम्पर सीट हो जाएगी, 150 सीटें हमको मिलेगी। क्या हुआ सर आपको? आप तो 82 थे, 89 हो पाए। और एकनाथ शिंदे जी हमारे 60 सभासद बीएमसी के उन्होंने तोड़ लिए। क्या हुआ उनका? वो 29 में रह गए, हमारे 65 आ गए, जबकि हमारी कुछ जगह पे 2-4 करीब 15 थी, हम कम वोटों से हार गए। चलिए वो अलग बात, हार गए तो हार गए, लेकिन हम 65 आ गए। तो ये चीज आपने इतना तोड़ा हमको। आप अभी कहते थे उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए, अच्छी बात आपने कही, उद्धव ठाकरे को भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए कि एक धोखेबाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे दोबारा मिले कि ना मिले, ये हमें सोचना चाहिए सर कि 30 साल तक हम संघ में रहे। और हिंदू के सम्राट जिनको भारत रत्न नहीं दिया, वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने इतने एहसान मानी मोदी जी पे किए थे, उस व्यक्ति ने पार्टी तोड़ दी। ये कहाँ का एहसान है और कहाँ का वो? क्या आपके साथ मुझसे मतलब नहीं, वो हिंदूवादी विचारधारा से उद्धव ठाकरे हट गए। कैसे हट गए उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे हट गए तो एकनाथ शिंदे कैसे आ गए? उनको मुख्यमंत्री का आपन क्यों दिया आपने? आपने मुख्यमंत्री का आपन न दिया होता, मंत्री बनाने का आपन न दिया होता, 50 हो के ईडी सीबीआई न लगाई होती और उनके सांसद इस वजह से न तोड़े होते, क्योंकि जो टूट के आए आपके पास, जिनके ईडी सीबीआई चल रही थी, आज वो बढ़िया नींद में सो रहे हैं। जब से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए वो अच्छी नींद में सो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे, जब उद्धव ठाकरे साथ थे, जब महाविकास अघाड़ी में थे, तो उनकी रात की नींद खराब थी कि कब आगे ईडी उनको धर लेगी और जेल में डाल देगी। जैसे अनिल देसाई संग हुआ, संजय राउत जी के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, तमाम लोगों के साथ हुआ। चाहे आप झारखंड चले जाइए वहां हुआ, असम पश्चिम बंगाल चले जाइए वहां हुआ, जो सब तमाम लोगों के साथ हुआ। आज वो सब आपके पास आ गए, आज चैन की नींद सो रहे। तो भैया ये राजनीति, इस तरह की राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति भाजपा कर सकती, करे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब तक जनता प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता चुन के आपको भेज रही है, तो आप भी तानाशाही कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। नहीं, हमारा अहंकार हमारे अंदर है, जो चाहेंगे हम वो करेंगे। उद्धव ठाकरे होंगे उनको भी हम कह देंगे साहब वो टोपी पहने, और भाजपा से नहीं कह पाएंगे साहब कि सलमान खान की बात करते हैं, अपने से सबको बैठाते हैं, वो टोपी पहने, भागवत जी मुसलमान टोपी पहन के बैठे, उनसे कोई नहीं कह पाएगा। तो ये जो दो तरह की राजनीति है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही, भारतीय जनता पार्टी नेता कर रहे हैं, वो शर्मनाक है।
वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। मैं final word। राजनीति देश में अगर होती है तो बहुत ही ज्यादा देश को नुकसान होता है। आज देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात अगर हम करें तो देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी जाति हमारी इस देश में है, जो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करने वाले के लिए आपके पास सरकार है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, सरकार आपके पास है। अगर आप उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। गलती है। दारू वाला साहब, आप आके सिर्फ बैठ के आके यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करते हैं कि साहब उन्होंने कहा साहब टुकड़े टुकड़े गए के आदमी वो है, वो बंदे मातरम नहीं गा रहे, नहीं गा रहे तो गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार कर जेल में डालिए, खत्म बात। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जाओ भैया, पाकिस्तान जाओ, झंडा बैनर लेके जाओ पाकिस्तान। दारू वाला साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द्विवेदी साहब? दारू वाला साहब। करेक्ट। मैं द्विवेदी जी का 8 बजे से 8:13 तक मैं टाइम देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। उनकी वेदना, उनका दुख और मैं उनका एंजाइटी समझ सकता हूँ। सत्ता जाने का जो उनको गम हुआ है वो मैं बेशक जानता हूँ। मैं उनसे एक ही काम कर सकता हूँ, आपको सराहना कर सकता हूँ। समझ जाइए, आप काम करिए, मेहनत करिए, आप भी दरवाजे खुले हैं। उद्धव जी का मान सम्मान और जो उनका स्टेचर है वो ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे माननीय उद्धव जी के लिए हमेशा खुले हैं। आप प्लीज आप वहां पे जाके उधर मेहनत करिए। अभी 3.5-4 साल आप लोग सत्ता में नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। जिसने सीएम की कुर्सी का जो एक स्वाद और आनंद लिया है, वहां से नए रहने में क्या हो सकता है आप में और मंत्रालय में जो अभी जो दूरी आई है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग मेहनत करिए और रिकंसाइल करिए। देयर शुड बी नो ऑपोजिशन। और बीजेपी जो ये देश के एजेंडा को और तरक्की के मशाल को लेके चल रहा है, असली मशाल को लेके चल रहा है, आप भी हमारे साथ जुड़िए। ये 2 शब्द कह के मैं दारोगा साहब एक छोटा सा चीज, रूबी, आप दारोगा साहब रूबी हॉस्पिटल में ना, द्विवेदी साहब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं। 1 मिनट दारोगा साहब, आप मैनेजमेंट में हैं रूबी हॉस्पिटल के। शरद पवार साहब शायद बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाउ डू यू सी, क्या शरद पवार जी वापस राज्यसभा जा पाएंगे? जो आप वहां पर थे, आपको सब इंफॉर्मेशन है। 10 एमएलए है, क्या रणनीति होगा उनका? ही इज परफेक्टली फाइन। जो अजीत पवार जी का जो दुखद निधन हुआ, जो हजारों लाखों के संख्या में जो लोग आए, उसके वजह से उनको सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। वेरी सून ही विल नॉट कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, ही विल वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। इतना ही मैं अभी आप लोग को, आपके माध्यम से लोगों को कह सकता हूँ। ही इज हेल एंड हार्टी एंड ही इज फाइन एंड वेरी सून ही विल बी डिस्चार्ज। आधा सेकंड द्विवेदी का सुन लिया। द्विवेदी जी जब बोलिए, दारोगा साहब हम लोग सब जा रहे हैं, वी आर वाइंडिंग अप। बोलिए द्विवेदी साहब, आधा सेकंड बोलिए, आधा मिनट। मैं दारू वाला साहब का मैं नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं। तो अगर ऐसी बात थी उद्धव ठाकरे इतने इंपॉर्टेंट, तो पार्टी क्यों तोड़ दी सर? पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री बनाने का एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया, और हमसे ज्यादा तो दुखी इसमें एकनाथ शिंदे सर है सर, जिनको मुख्यमंत्री आपने बनाया और 2.5 साल बाद लात मार के बाहर कर दिया। जय महाराष्ट्र। Happy Mahashivratri to both Daruwala Sahab and Dwivedi Sahab and to all of you. 70 lakh people watching us. 70 lakh. जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you Dwivedi ji. Thank you Daruwala Sahab. As we always end with the preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. We talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, when you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And it is always, as we always believe, it's a fundamental duty of all political parties and political leaders to see that they come together to preserve and protect the fundamental foundations of our Constitution. Because if the foundations of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. If the Constitution survives, the Republic survives. And if the Republic survives, the people of the Republic survive.
That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.